Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with a chapter on heat transfer. आज हम करने वाले हैं heat transfer start to end. सारा थियरी कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ lots of questions and lots of PYQs for JEE mains. So we are going to go एकदम start to end. We are going to start off with the concept of conduction and उसके बाद we are going to look at radiation. And by the end of this lecture, you will be a master of this chapter. So I hope you are as excited as I am. Let's go. Let's start this chapter with the concept of conduction. How is heat conducted? So अगर मेरे पास एक रॉड है, let's say एक एंड का टेम्परेचर T1 है और दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है, ठीक है? Let's say कि T1 is greater than T2. We know that heat will flow from the higher temperature to the lower temperature. So heat is going to flow in this manner from the left end to the right end. ठीक है? Because T1 is greater than T2. अब कितना heat flow करेगा? That is the question that we want to answer. तो suppose इसका area A है and ये length L है. It turns out the rate of heat transferred, the rate of heat flow, dQ by dt is the rate of heat flow. Q is my heat, dQ by dt is the rate at which heat is being transferred or heat is flowing from the left end to the right end. This rate is proportional to the area. जितना ज़्यादा area है उतना ज़्यादा heat flow होता है. It is inversely proportional to the length. जितना दूर दूसरा end है उतना कम rate of heat flow है. ये सब observations है, okay? And of course it is proportional to the temperature difference. जितना ज़्यादा temperature difference है उतना ज़्यादा heat flow करेगा. That is something that we expect, okay? And therefore all of these are observations ultimately, कोई rigorous proof नहीं है इसके लिए. So therefore dq by dt comes out to be equal to k a t1 minus t2 divided by L, where k is the constant of proportionality to all these values, ठीक है, all these terms. तो यहाँ पर मेरा k जो है, it is a material dependent quantity. It's called thermal conductivity. तो हर मटेरियल का अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू हो, ओके? एंड ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो. T1 माइनस T2 इज द टेम्परेचर डिफरेंस. सो अगर मेरा हीट फ्लो ऐसे हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है दैट इज माय ए. T1 एंड T2 आर ऑफ कोर्स द टेम्परेचर्स ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड एंड L इज द लेंथ ऑफ द रॉड. यहाँ पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका SI यूनिट्स क्या होगा? dQ by dt इज पावर, मतलब वॉट्स. मीटर, एरिया बाय लेंथ इज मीटर, मीटर स्क्वायर बाय मीटर इज मीटर. मीटर नीचे आ जाएगा एंड T1 माइनस T2 इज केल्विन, तो वो भी नीचे आ जाएगा. सो थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट्स इज गोइंग टू बी वॉट मीटर पर केल्विन, ठीक है? सॉरी, वॉट पर मीटर पर केल्विन. एरिया बाय लेंथ इज मीटर, तो वो भी नीचे आ जाएगा, केल्विन भी नीचे आ जाएगा. दिस इज वॉट्स. ऑलराइट, तो इस तरीके से मेरा रेट ऑफ हीट फ्लो होता है प्रोपोर्शनल टू एरिया, proportional to temperature difference and inversely proportional length, and the proportionality constant is called the thermal conductivity. Here what we are dealing with is steady state. अपने syllabus में वही है, steady state. What steady state means is that the rate of heat flow is same throughout the rod. dQ by dt is same throughout the rod. इसका मतलब क्या कि अगर 100 joules per second इधर से enter हो रहा है, 100 जूल्स पर सेकेंड इधर से निकल भी रहा है, तो कहीं बीच में एब्जॉर्ब नहीं हो. अगर इस पॉइंट को देखूं, इफ आई कंसीडर क्रॉस सेक्शन हियर एंड आई आस्क यू हाउ मच हीट इज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन, इट्स गोइंग टू बी 100 जूल्स पर सेकेंड. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्टेडी स्टेट. अगर कहीं हीट एब्जॉर्ब होता तो टेम्परेचर चेंज होता टाइम के साथ रॉड का, बट वो नहीं हो रहा. वो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि टेम्परेचर, all of these temperatures are constant with time, so we're dealing with steady state. So dQ by dt, the rate of heat flow is constant throughout the rod and it's a constant with time, okay? All right, तो ये मेरा फॉर्मूला है जो अपन याद रखेंगे. देखो, now I want to calculate कि अगर मेरे पास एक रॉड है, टेम्परेचर T1 दिया गया है, T1 is greater than T2, at a distance x, what is the temperature? तो रॉड का टेम्परेचर लेफ्ट एंड T1 है, राइट एंड T2 पर रखा हुआ है, तो बीच में कहीं तो चेंज होता रहेगा टेम्परेचर. टेम्परेचर मस्ट बी डिक्रीजिंग फ्रॉम T1 to T2. So exactly at a distance x, what is the temperature? So we are going to use the fact that we are dealing with steady state. Steady state matlab, if I imagine a cross section here,
इफ आई जस्ट इमेजिन अ क्रॉस सेक्शन हियर, इसका मतलब आई कैन ट्रीट इट एज 2 rods, ठीक है, तो आई कैन ट्रीट इट एज 2 rods दैट आर इन कॉन्टैक्ट। तो ये लेंथ x है, ये लेंथ l माइनस x है, अल्टीमेटली एक ही रॉड है बट आई एम ट्रीटिंग इट एज 2 rods, ठीक है। तो लेट्स से जंक्शन, इस क्रॉस सेक्शन जहां पे मुझे टेम्परेचर निकालना है उसका टेम्परेचर T है, यहाँ पे T2 है, ये T1 है। तो हीट फ्लोइंग फ्रॉम T1 to T should be equal to the heat flowing from T to T2. The heat flowing across this section of the rod should be equal to heat flowing across this section of the rod. Steady state heat flowing is the same, rate of heat flowing is the same. तो इसके अक्रॉस कितना हीट फ्लो होगा, dq by dt कितना होता है, k a T1 minus T, T1 is greater than T divided by L, L नहीं अभी, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, x. But this rate of heat should also be equal to the rate of heat flowing through this. वो कितना बन जाएगा, k a T minus T2. See, we know कि temperature, heat is flowing from left to right, so left end should always have the higher temperature. इस section of the rod के लिए T1 must be greater than T, इस section of the rod के लिए T must be greater than T2. उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय L minus x. ओके, अब मुझे T के लिए सॉल्व करना है, आई बेसिकली वांट टू फाइंड T. तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, k a कट गया, देखो क्या बन जाएगा, T1 minus T times L minus x should be equal to xt minus xt2. ऑलराइट, तो ये क्या बन जाएगा, देखो xt यहाँ पे भी है, कट गया, तो T1 into T1L minus T1x minus TL should be equal to xt minus xt2. ऑलराइट, सो T कितना बन जाएगा, देखो द टेम्परेचर T विल बिकम, यहाँ पर T है, यहाँ पर एक और T है, नहीं xt तो कट गया, सॉरी, तो ये तो कट गया, x इंटू टी कट गया, बचेगा बस माइनस xt2, ठीक है। तो अब बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया मेरे पास, आई हैव T1L एंड सो दिस विल बी T1L माइनस x कॉमन ले लो, तो T1 माइनस T2 बचेगा, बाय टेकिंग माइनस xt2 हियर, x माइनस x कॉमन लेके T1 माइनस T2 बचेगा, एंड दिस विल बी ऑन द राइट हैंड साइड T इंटू L, तो L से डिवाइड करता हूँ फाइनली, तो देखो क्या बचेगा, दिस विल बिकम T1 माइनस T2 बाय L इंटू x, ठीक है। नाउ दिस may seem like a complicated formula, but it's actually just a linear relation. y इक्वल mx प्लस c का फॉर्म है, where m is this. So अभी से अगर एग्जाम में पूछा गया find the temperature at a distance x, you don't have to do this calculation because you can use just the linear formula. अभी से तुम बोल सकते हो कि टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x वुड बी mx प्लस c. m क्या है, स्लोप, टेम्परेचर यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, सो स्लोप में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, T1 स्लोप क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय L. वाई T2 माइनस T1, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 होता है, y2 मतलब यहाँ पे टेम्परेचर T, सो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, x इक्वल टू, वी नो x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर इज T1, x इक्वल टू L पे टेम्परेचर इज T2, तो स्लोप क्या बन जाएगा, T इज लाइक द कैपिटल T इज लाइक द y कोऑर्डिनेट, स्लोप क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, एंड c का वैल्यू, वो तो x इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है वही c का वैल्यू है, व्हिच इज व्हाट, T1, तो हो गया, मिल गया, ठीक है। T2 माइनस T1 है, उसको मैंने नेगेटिव T1 माइनस T2 ऐसे लिखा, ओके। सो अगर एग्जाम में अभी आया क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द टेम्परेचर एट डिस्टेंस x, जस्ट यूज दिस, रिमेंबर कि इट्स लीनियर एंड यूज दिस एक्सप्रेशन, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, ये तो बेसिक स्ट्रेट लाइन स्लोप फॉर्मूला से आ जाए, ओके। सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं टेम्परेचर T वर्सेस x, इट विल डिक्रीज फ्रॉम T1 एंड इट विल गो टू T2 इन अ स्ट्रेट लाइन मैनर, this is x equal to 0, this is x equal to L, ठीक है, देख लो। Let's look at a simple question from JEE 2022. मेरे पास दो रॉड्स है कनेक्टेड, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, K के टर्म्स में पूछा गया था दूसरे रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी. दिस एंड इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट मोस्ट एंड ऑफ द राइट रॉड इज मेंटेन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इंटरफेस का वैल्यू दिया था, टेम्परेचर का, जंक्शन का टेम्परेचर दिया था 80 डिग्री सेल्सियस. तो लेंस दिए हुए हैं, K डैश पूछा गया. सो ऐसे क्वेश्चंस में वी आर गोइंग टू अज्यूम स्टेडी स्टेट. ये कुछ बोला नहीं गया तो भी हम अज्यूम करने वाले हैं कि स्टेडी स्टेट है. इसका मतलब क्या है? द हीट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट रॉड. सी हीट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम 100 to 0.
So heat flowing through the first rod is equal to the heat flowing in the second rod, steady state. Okay, so कितना heat flow करेगा? I know dq by dt, rate of heat flow is Ka T1 minus T2 by L. तो फर्स्ट रॉड में कितना हीट फ्लो कर रहा है? Ka, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है दोनों के लिए. T1 minus T2, मतलब T1 is 100 and T2 is 80 degree Celsius. So 100 minus 80 divided by length is 16 centimeter. Should be equal to the heat flowing in the second rod. So that will be Ka 80 minus 0 divided by 8 centimeters. अब K मतलब K dash, second rod का K dash. बस अभी solve करना है K dash निकालना. So it's a very simple concept. All you have to do is equate the rate of heat flow in the rods that are connected to each other. Why? Because the rate of the heat flowing through the first rod is equal to the rate of heat flowing through the second rod. So area cancel कर दो, ये 8 centimeter, ये 2 बचेगा. So K dash would be equal to 100 minus 80 is 20. 20 divided by 2 is 10 divided by 80. तो ये बन जाएगा K by 8. ठीक है. So K dash का वैल्यू बन जाएगा K by 8. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2025. Two cylindrical rods A and B are joined in a straight line. लेंथ्स का रेशियो दिया गया है, उनके रेडियस क्रॉस सेक्शन जो है उनका रेडियस का रेशियो दिया गया है, एंड थर्मल कंडक्टिविटीज का रेशियो दिया गया है. फ्री एंड्स ऑफ A and B are maintained at 400 and 200 Kelvin respectively. The temperature of the interface is how much? तो अगर मैंने रॉड्स को बनाया तो ये रॉड A है, रॉड B का लेंथ डबल है, बट उसका रेडियस हाफ है. रेडियस ऑफ A इज डबल ऑफ B. इस तरीके से कुछ दिखेगा रॉड B. इसका थर्मल कंडक्टिविटी Ka और इसका Kb. ना फ्री एंड्स मतलब ये एंड और ये एंड मेंटेन एट 400 एंड 200 केल्विन रिस्पेक्टिवली. तो पूछा गया है ये जो टेम्परेचर जंक्शन का है, इंटरफेस वाला जंक्शन जहाँ पे जॉइंट है, उसका टेम्परेचर कितना है. Once again, we are going to use the fact that we are dealing with steady state, and therefore the heat flowing in the first rod should be equal to the rate of heat flowing in the second rod. So rate of heat flowing in the first rod कितना हो जाएगा? Ka into area, which is pi Ra squared into 400 minus T divided by length of A should be equal to the rate of heat flowing through B, which is K of B into pi Rb squared area into अब T से 200 जा रहे हैं डिवाइड बाय लेंथ ऑफ B. हो गया. अब अपने को T के लिए सॉल्व करना है, अपने को सब रेशियोज पता है ना. सो आई विल हैव Ka पाई तो कट गया, Ka इंटू Ra स्क्वायर्ड Kb एंड लेंथ Lb ऊपर लेता हूँ, सब कुछ एक साइड पे ले लिया मैंने. शुड बी इक्वल टू T माइनस 200 डिवाइड बाय 400 माइनस T. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो Ka बाय Kb क्या है? हाफ. ठीक है. So half Ra by Rb squared is 4, Lb by La. Lb by La is 2. Should be equal to T minus 200 divided by 400 minus T. तो यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ. हो गया, अभी सॉल्व करना है. तो ये तो 4 बन जाएगा. तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1600 minus 4T should be equal to T minus 200. So 5T should be equal to 1800. मतलब T का वैल्यू कितना बन जाएगा? 360 Kelvin. Okay, so 360 Kelvin is the answer. But basically the whole concept of the question, these type of questions, very straightforward. All you have to do is write the rate of heat flowing in the first rod equated to the rate of heat flowing in the second rod. देख लो. Now अब ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं JEE 2020 से, जहाँ पे 3 रॉड्स थे. Left end is maintained at 100 degree Celsius, the right end is maintained at 0 degree Celsius. Interface के temperatures दिए गए थे 70 degrees and 20 degrees. Okay. All rods have same length and cross section. Find the ratio of K1 is to K2 and K2 is to K3. ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था. Options थे. Okay. कुछ नहीं करना है, कितने भी rods होने दो. If they are connected one after the other, the heat flowing, see heat will flow from the highest temperature to the lowest temperature. So heat flowing through the first rod should be equal to heat flowing through the second rod, should be equal to heat flowing through the third rod. Simple. तो फर्स्ट रॉड में कितना रेट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है? dq by dt कितना बन जाएगा? सबका एरिया एंड लेंथ सेम है. K1 into A into टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 30 डिवाइडेड बाय L. सबका लेंथ सेम है. शुड बी इक्वल टू सेकेंड रॉड के अक्रॉस K2 into A 70 minus 20 is 50 डिवाइडेड बाय लेंथ
K3 into A into 20 minus 0 divided by length. तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन दोनों को इक्वेट करने से मेरे पास क्या आ रहा है 3K1 इज इक्वल टू 5K2. क्या चाहिए मुझे? K1 is to K2. So K1 is to K2 is K1 by K2 is 5 is to 3, correct? And K2 is to K3. K2 by K3 would be 2 is to 5. Simple. Okay? So ऐसे तीन रॉड देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन में वही एक ही चीज करते रहना है. देख लो. Now let's talk about the concept of thermal resistance. तो जैसे मैंने लिखा है कि the rate of heat flowing across a rod is Ka T1 minus T2 divided by length. ये मैंने लिखा था. Alright. So I'm going to start by labeling dq by dt as what is sometimes called as thermal current. तो इसको मैं I से represent करता हूँ. ठीक है, just another name for the rate of heat flow. So it's called thermal current. ठीक है. So this thermal current, I'm going to write it as T1 minus T2 divided by R, where R is called the thermal resistance. It's just another variable. और ये R का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Ka और L कितना बन जाएगा? You can see that, करेक्ट? R डिनोमिनेटर में ना, so R would be equal to L by Ka. Alright, so this is the definition of thermal resistance. एक रॉड है जिसमें heat is flowing across a length L. The thermal resistance is given by L, length that the heat travels, divided by thermal conductivity into A, which is the area, which is the cross-sectional area, मतलब perpendicular to the heat flow. Okay. So ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? Because it looks mathematically very similar to what is known as Ohm's law, जो current electricity में पढ़ते हो. Now you may or may not have studied current electricity. I'll just speak a few words on that. तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी जानने की कुछ जरूरत नहीं है, तुमको ओम्स लॉ क्या होता है वो भी जानने की जरूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ओके, बट फिर भी मैं जस्ट फॉर कंप्लीटनेस से जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि मेरे पास ऐसे एक रेजिस्टेंस होता है एंड जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, द पोटेंशियल हियर इज V1, द पोटेंशियल हियर इज V2. करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इन अ रेजिस्टेंस एंड दैट करंट इज गिवन एज V1 minus V2 divided by R. Now, if you've studied a little bit of Ohm's law, you might find it familiar. If you have not, you can just listen to me and ignore this. And जब तुम current electricity पढ़ोगे chapter, तब तुम्हें ये वाला context पूरा समझ में आ जाएगा. Okay. My only point is that this looks mathematically exactly like this, just that potentials have been replaced by temperature. And ये जो denominator में है, वो इसी की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम thermal resistance दिया गया है. ठीक है. And ये जो electric current था, उसके जगह thermal current आ जाता है. Alright. तो ये ओम्स लॉ के बारे में तुमको जानने की जरूरत नहीं है. When you study current electricity, you will understand the context in which I am speaking. Okay, so ये मेरा thermal resistance का फॉर्मूला है. ये मेरा thermal current का फॉर्मूला है in terms of thermal resistance. Is the temperature difference divided by resistance. Alright, देख लो. Now let's look at the concept of equivalent resistance. तो अगर suppose मेरे पास ऐसे दो rods है and they are connected end to end. So this is called series. These rods are in series. मतलब the heat current is flowing from one rod and then it is going to the next rod. तो one after the other. तो पूरा heat current जो पहले rod में जा रहा है वही दूसरे rod में भी जा रहा है. So इसका suppose thermal resistance R1 है, इसका R2 है. If you know length, if you know area, if you know thermal conductivity of each rod, you can use the formula that we just saw to calculate the thermal resistances of each rod. ठीक है, तो वो आई एम अज्यूमिंग कि वो हमने कर लिया है एंड वी नो R1 एज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड, R2 एज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड. एंड मुझे जो करना है, आई वांट टू रिप्लेस दिस सिस्टम बाय अ सिंगल थर्मल रेजिस्टेंस व्हिच कैरीज द सेम करंट एज द ओरिजिनल सिस्टम I. ओरिजिनल सिस्टम में जो करंट I जा रहा था वही सेम करंट जा रहा है एंड पूरे सिस्टम को मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया विच इज अक्रॉस T1 एंड T2. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आता है. इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. सो कैन आई राइट जस्ट लेट्स से जंक्शन टेम्परेचर इज T. सो आई नो I इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा T1 माइनस T इज IR1. सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या बनेगा, I इज इक्वल टू T माइनस T2. T is the greater temperature compared to T2. So T minus T2 divided by R2.
So I can write T minus T2 should be IR2. If I add them, I'll have T1 minus T2 is I times R1 plus R2. बस ऐड किया मैंने. अगर वही इक्वेशन में यहां पर लिखूं, I can write I is equal to T1 minus T2 divided by R equivalent. करेक्ट. इस इक्वेशन से I का वैल्यू कितना मिला? Same I होना चाहिए. That is the whole point, that we want the same current. And therefore equating these two, you can see R equivalent comes out to be R1 plus R2. So it's a very standard formula, very well-known formula. कि the equivalent resistance of two rods in series is just the addition of the resistances. And यही चीज current electricity में भी होता है, जो हम उस चैप्टर में देखेंगे. हम ये याद रखने वाले, ठीक है. 3 रॉड सीरीज में तो बस R1 plus R2 plus R3 ऐसे. ओके, ऑलराइट, देख लो. नाउ लेट्स लुक एट रॉड्स इन पैरेलल. तो व्हाट डू आई मीन बाय पैरेलल? पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसे दो रॉड्स है, दे डोंट हैव टू लुक पैरेलल. पैरेलल का मतलब दोनों का लेफ्ट एंड इज एट द सेम टेम्परेचर T1, दोनों का राइट एंड इज एट द सेम टेम्परेचर T2, ऐसे. तो पैरेलल मतलब क्या? दोनों का लेफ्ट हैंड एक टेम्परेचर पे है, कॉमन टेम्परेचर पे है, दोनों का राइट हैंड कॉमन टेम्परेचर पे है. सो दे आर अक्रॉस द सेम टेम्परेचर डिफरेंस. सो इसके थ्रू I1 जा रहा है, इसके थ्रू I2 जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है. आई वांट टू रिप्लेस दिस बाय अ सिंगल रॉड ऑफ रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट व्हिच विल कैरी द सेम करंट एज द टोटल सिस्टम. तो यहाँ पे टोटल करंट कितना है? I1 plus I2 एंड इट इज अक्रॉस द सेम टेम्परेचर डिफरेंस. सो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ? I1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय R1. I2 कितना है? T1 माइनस T2 बाय R2. सो I1 प्लस I2 कितना बन जाएगा? T1 माइनस T2 इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. करेक्ट. सेम चीज यहां पर मैं अगर लिखूं, करंट इज T1 माइनस T2 बाय R इक्विवेलेंट. कंपेयर करो. सो आई हैव द फेमस फॉर्मूला, the well-known formula that 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2. So parallel combination जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस सेम है दोनों रॉड के क्रॉस, उसमें R equivalent का फॉर्मूला ये दिया जाता है 1 by R1 plus 1 by R2. ओके, तो ये दो फॉर्मूला जो हमने सीरीज के लिए पढ़ा और अभी पैरेलल के लिए पढ़ा, ये हमें याद रखना है. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2025. मेरे पास ऐसे 3 रॉड्स है. ये है K1 थर्मल कंडक्टिविटी, ये K2 एंड ये K3. ठीक है. एरिया ऑफ द थर्ड कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज डबल दैट ऑफ K1 एंड K2. तो K1 और K2 का जो है उसका डबल है. ठीक है. एंड K1 का वैल्यू दिया गया है, K2 का वैल्यू दिया गया है, K3 का वैल्यू दिया गया है, और पूछा गया है जो इंटरफेस है ये, उसका टेम्परेचर कितना होगा. ओके, ठीक है. सो सबसे पहले वी हैव टू फिगर आउट कि if I draw resistances, how does this look like? Is there any series parallel? यहाँ पे series parallel will help us out. तो can you see कि K1 and K2 are across the same temperature difference, 100 on the left and theta on the right. तो मैं K1 K2 को ऐसे, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है जो मैं बना रहा हूँ. So this is R1, R2, फिर R1 and R2 correspond to K1 and K2. This is at 100 degree Celsius. एंड ये जो है दिस इज एट 0 डिग्री थीटा डिग्री सेल्सियस, सॉरी. एंड देन दिस एंटायर कॉम्बिनेशन में जो हीट जा रहा है, टोटल हीट, वो पूरा K3 में जा रहा है. मतलब K3 एंड दिस कॉम्बिनेशन आर इन सीरीज. सो ये मेरा R3 बन गया करस्पॉन्डिंग टू K3 एंड दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो R3 व्हिच इज करस्पॉन्डिंग टू द थर्ड रॉड इज अक्रॉस थीटा एंड 0 एंड R1 एंड R2 आर अक्रॉस 100 एंड थीटा. ठीक है. सो क्या पूछा गया है? They're asking us this angle. So what I can do is I can combine these in parallel. I can say ये कुछ R equivalent है, ये थीटा डिग्री सेल्सियस है, ये R3 है, 0 डिग्री सेल्सियस. ओके. एंड अगर मुझे थीटा निकालना है, this is the same thing that we have always done कि दो rods are connected to each other, they are in series. How to find the temperature at the interface? Just equate the rate of heat flow. So thermal current इसमें कितना बन जाएगा? That will be 100 minus theta divided by R equivalent. 100 minus theta divided by R equivalent should be equal to current here, which is going to be theta minus 0 divided by R3. ठीक है. तो अभी मुझे क्या करना है? I just have to calculate
R3 and R equivalent, substitute and get the value of theta. Simple. So R equivalent कितना बन जाएगा? सबसे पहले R1 कितना बन जाएगा? R1 would be क्या था? L by KA था, ठीक है? ये लेंथ सेम दिया गया है, ये लेंथ दोनों का सेम है, वो क्वेश्चन में दिया गया. So R is L by KA, correct? So R1 would be L divided by K1 into area. R2 would be L divided by K2 into area, and R3 would be L divided by K3 into 2A, because इसका area डबल है. This is area A, this is area A, this is 2A, ठीक है? तो बस अपने को अभी सब्स्टिट्यूट करना है. सो देखो क्या बन जाएगा, 100 माइनस थीटा डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट. इसका आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? 1 बाय आर इक्विवेलेंट वुड बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. सो K1 A बाय L प्लस K2 A बाय L, करेक्ट? तो ये बन जाएगा K1 प्लस K2 A बाय L, राइट? K1 A बाय L प्लस K2 A बाय L should be equal to थीटा माइनस 0 बाय R3. सो थीटा बाय R3, तो K3 into 2A थीटा डिवाइड बाय L. यू कैन ऑल्सो, मतलब ये सीरीज पैरेलल फॉर्मूला करने की जरूरत भी नहीं है. यू कैन ऑल्सो यूज योर डायरेक्ट फॉर्मूला दैट वी स्टार्टेड द चैप्टर विद. इसमें कितना हीट जा रहा है, इसमें कितना हीट जा रहा है, K1 A बाय L, K2 A बाय L, फिर ऐड करो तो ये इक्वेशन आएगा. ओके, अच्छा बस अब तो अपने को सब्स्टिट्यूट करना है. तो सबसे पहले ये A बाय L और ये A बाय L कट गया. सो 100 माइनस थीटा इंटू K1 प्लस K2 कितना है? 60 प्लस 120, 180. K3 कितना है? 135. 135 इंटू 2 इज 270, ठीक है? तो 90 इंटू 3, 90 इंटू 2. तो देखो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 100 इज 200. ये 2 थीटा राइट हैंड साइड पे लेता हूँ, ऐड कर रहा हूँ 3 थीटा के साथ, तो ये 5 थीटा. तो थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? सो मेरा थीटा का वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस आ गया. So you can see the flow of this question, the flow of the solution. ये हमने पहले क्या किया, इसको रेजिस्टेंस इसका निकाला, इसका निकाला, कंबाइन किया इन पैरेलल, एंड देन वी सॉ दैट दीस टू आर इन सीरीज. ओके, एक बार तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे सीरीज पैरेलल वाले. देन व्हेन यू कम बैक टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस विल सीम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. देखो, लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019. तो मेरे पास ऐसे रॉड है, ये पूरा देखो लेंथ कितना है, L/2 प्लस L प्लस L/2, 2L लेंथ का रॉड है, और एक ऐसे बेंट रॉड है, ठीक है? एंड ये सारा कुछ एक ही मटेरियल से बनाया गया है. सो इट्स ऑल द सेम मटेरियल. बोला गया कि TA माइनस TB टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन A एंड B. सो A is maintained at one temperature, B is maintained at the other temperature, and दोनों का बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 120 डिग्री सेल्सियस. पूछा गया टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q. Okay, so here the concept of resistances will be quite useful. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो L/2 है, ये L है, ये L/2 है. See, I know resistance is L by KA, ठीक है? सब जगह क्रॉस सेक्शन सेम दिया है. ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है एरिया A, वो पूरा सेम है दोनों, इसमें भी और इसमें भी. वो भी क्वेश्चन में बोला गया. Alright, so basically I can say resistance is proportional to length because K and A are same for entire system. So resistance is proportional to length. तो इसको मैं AP के बीच में लेंथ L/2 है, तो मैं रेजिस्टेंस R/2 लिखता हूँ. P और Q के बीच में रेजिस्टेंस R है, ठीक है? बिकॉज लेंथ L है, एंड Q and B के बीच में रेजिस्टेंस R/2 अगेन. एंड देन how much is this length? This is L/4, this is L, this is L/4. L/4 plus L/4 would be 3L/2. तो वहां पे मैं रेजिस्टेंस बना सकता हूं 3R/2. पूरा एक, I can just consider this as one rod, ठीक है? So and the length that the heat has to travel is 3L/2. So 3R/2. So this entire thing will be in parallel with this R. All right. What is the question? The question is asking is the temperature from temperature difference across P and Q. So now if you have studied current electricity, this will be a very straightforward question. अगर current electricity नहीं पढ़ा है, so then we are going to solve this from एकदम basics. But by the time तुम current electricity वाला chapter करते हो, if you come back to this question, you will be able to solve it in a single minute. Okay? Anyway, तो इसको हम थोड़ा basic से करेंगे. तो this is temperature at, this is point A, this is point B. So सबसे पहले तो कैन आई से कि 3R/2 and R are in parallel.
सो इनका आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 1 by R equivalent should be equal to 1 by R1 plus 1 by R2, 2 by 3R plus 1 by R, तो ये बन जाएगा 5 by 3R, करेक्ट। सो R equivalent कितना बन जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 3R by 5. So I can redraw this R by 2, 3R by 5 and R by 2, ठीक है। ये A, ये P, ये Q and ये B। अच्छा, अब करंट कितना जा रहा है, द करंट गोइंग स्टेडी स्टेट में, तो करंट गोइंग फ्रॉम ए टू पी इज द सेम एज करंट गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू इज द सेम एज करंट गोइंग फ्रॉम क्यू टू बी, राइट। सो करंट गोइंग फ्रॉम ए टू बी, कैन आई राइट इट एज द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज 120 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब ये तीनों सीरीज में है, इस पूरे का सीरीज इक्विवेलेंट कितना है, r by 2 plus 3r by 5 plus r by 2, करेक्ट। r by 2 plus r by 2 is r plus 3r by 5 is 8r by 5, तो ये बन जाएगा 8r by 5. So I have divided the temperature difference divided by the resistance. Okay, तो ये कितना बन जाएगा, ये 15 into 5 is 75. So 75 by r is my current. Okay, but that current should also be the current from P to Q. So can I say the 75 by R should also be the current from P to Q? So temperature at P minus temperature at Q divided by ये कितना है 3R by 5. तो यहाँ से अपने को temperature at P minus temperature at Q which is what I want वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा देखो, 75 by R into 3R by 5, तो ये 5 into 15 ये बन जाएगा 45. So 45 degree Celsius is the temperature difference between P and Q. So this is a very nice level question और इसकी तरह और questions ज़्यादा नहीं आए हैं in fact JEE mains में। This was one question that I picked out which is probably the most difficult in the sense कि it involves concepts from current electricity chapter. Once you study current electricity chapter, this question will be very straightforward for you because इस तरीके से बहुत सारे वहाँ पर encounter करोगे। Okay, अगर ये पहली बार कर रहे हो तो you might think कि बहुत मुश्किल question है, and to be honest जेई मेंस में लास्ट 5-6 ईयर्स में एक ही बार इस तरीके से क्वेश्चन है, 1-2 बार ही आया है ऐसा क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी हमने चीजें यहाँ पर किए हैं, दीज आर ऑल वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स दैट यू विल स्टडी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, सो ये क्वेश्चन से डरना नहीं है, अंडरस्टैंड द सोल्यूशन एंड द लाइक्लीहुड ऑफ दिस कमिंग इन हीट ट्रांसफर इज अ लिटिल लेस, but such questions can definitely come in current electricity, but by the time you study that chapter this type of question will be very easy for you. Okay, देख लो। Let's talk about equivalent thermal conductivity. तो अगर सपोज मेरे पास ऐसे दो रॉड्स है, ठीक है, एरिया वगैरह भी अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका एरिया A1 है, लेंथ कुछ L1 है, K1 है, ये K2, L2 and area A2. So what do I mean by the equivalent thermal conductivity of the system? So let's say heat is flowing, left hand is at temperature T1, right hand is at temperature T2, heat is flowing from one end to the other. I want to replace this system by a single material of some thermal conductivity which जिसको मैं बोल रहा हूँ K equivalent. So what is K equivalent? I'm just trying to replace this system by a single material. उस single material का conductivity is K equivalent, such that the thermal resistance of this equivalent system is the same as the original system. ठीक है, K equivalent मतलब क्या, कुछ तो सेम रहना पड़ेगा। क्या सेम रख रहे हैं अपन? Thermal conductivity of this new system which we are replacing by single material. Single material मतलब single K, वो single K वैल्यू को मैं K equivalent बोल रहा हूँ, such that the thermal resistance is the same as the original. तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, सीरीज में है, so L1 by K1 A1 R1 plus L2 by K2 A2 R1 plus R2 R equivalent. This thermal resistance of this entire system should be equal to the thermal resistance of this system. वो कितना बन जाएगा, ये L1 है, so L1 by K equivalent A1 plus इसका L2 है और एरिया इसका A2 है, ठीक है। यहाँ पे भी सीरीज में है, वहां पे भी R1 plus R2 के, बट K का वैल्यू क्या है, K इक्विवेलेंट। तो इससे यू कैन सॉल्व फॉर K इक्विवेलेंट इस इक्वेशन से। सो K इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी देन यू जस्ट राइट द रेजिस्टेंस इक्वेटेड टू द न्यू सिस्टम का रेजिस्टेंस
एंड सॉल्व फॉर के इक्विवेलेंट। ओके, एक आधा एग्जांपल देखते हैं, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन J 2022। मेरे पास दो रॉड्स हैं 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। इसका K है थर्मल कंडक्टिविटी, इसका 2K, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड के इक्विवेलेंट दिया गया है 1 + 5 by अल्फा के, अल्फा का वैल्यू निकालना मुझे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस सिस्टम बाय अ सिंगल के इक्विवेलेंट। अब पूरे रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सो आई कैन बेसिकली ट्रीट इट एज वन रॉड ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? पहले वाले रॉड का कितना है? L मतलब 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय KA प्लस एक एरिया है, कट जाएगा। यू शुड सी कि वो कट जाएगा। ये 120 सेंटीमीटर ऐसे ही कंफ्यूज करने के दिया है, टाइम वेस्ट करने के लिए दिया। प्लस इसका क्या है? L बाय K मतलब 2K इंटू एरिया शुड बी इक्वल टू इस पूरे रॉड का विच इज L डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इंटू A, करेक्ट? तो हो गया। अब यू कैन सी कि A कट जाएगा, तो ये देखो क्या बचेगा 4/K प्लस 2.5/2 मतलब मैं 5/4 लिखूँ उसको, शुड बी 6.5 मतलब मैं 13/2 लिखता हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन इज। देखो क्या बन जाएगा 4 into 4 16 plus 5 21, तो 21/4K शुड बी 13/2K इक्विवेलेंट। सो K इक्विवेलेंट वुड बी, ये 2 कैंसिल हो गया, K इक्विवेलेंट वुड बी 13 डिवाइडेड बाय 13 into 26 डिवाइडेड बाय 21K। ठीक है, तो इसको मैं इससे कंपेयर करके लिख सकता हूँ 1 + 5/21, ओके, करेक्ट? तो आंसर मेरा अल्फा का वैल्यू बन जाएगा 21। ऑलराइट, तो ये 100 0 यूजलेस, दिस 120 सेंटीमीटर, दिस 100 0 यूजलेस इन द सेंस कि वी डोंट नीड वैल्यूज, बट वी नो कि द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बस। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, फॉर दैट इज यूजफुल। ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू इज यूजलेस, तो जस्ट टू वेस्ट आवर टाइम इफ यू कीप सब्स्टिट्यूटिंग 120 हियर। ओके, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन J 2019। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, जहाँ पे मेरे पास दो सिलेंडर्स है, एक पूरा सॉलिड सिलेंडर है रेडियस R का, एंड उसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल शेल है जिसका इनर रेडियस R है एंड आउटर रेडियस 2R है। ठीक है, सो मेरे पास ऐसे दो मटेरियल्स है, एक का थर्मल कंडक्टिविटी पूरा K1 है इसका, एंड इसके अराउंड एक और सिलेंड्रिकल शेल है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, एंड हीट इज फ्लोइंग अक्रॉस द लेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू कैन से। तो पूछा गया था व्हाट इज द K इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए यू वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। सो हियर these cylinders, the inner cylinder and the cylindrical shell, they are in parallel. Why parallel? क्योंकि left end is at the same temperature, heat is flowing from left to right, left end is at the same temperature, right end is at the same temperature. So ये दोनों अंदर वाला जो सिलेंडर है, आउटर सिलेंड्रिकल शेल है, उनमें वो दोनों they are both represented by thermal resistances in parallel. ठीक है, so first I'll have to calculate the equivalent thermal resistance. So अंदर वाले का रेजिस्टेंस अगर मैं R1 बोलूं वो कितना बन जाएगा? लेट्स से ये लेंथ L है, L बाय K1 इंटू, सो ये रेडियस को मैं रेडियस R लिखा ना, पाई R²। ठीक है, K1 इंटू द एरिया, एंड R2 को क्या लिख सकता हूँ? L बाय K2 इंटू आउटर सिलेंड्रिकल शेल का रेडियस क्या है? इट इज ओनली दिस मच, सो दैट विल बी पाई इंटू 2R का स्क्वायर माइनस R², राइट? सिर्फ इतना, ये बीच वाला पाई R² एक्सक्लूड कर रहा है, तो ये बन जाएगा L डिवाइडेड बाय 3K2 पाई R²। ठीक है, तो ये मेरा R1 एंड R2 बन गया। सो R इक्विवेलेंट में क्या लिख सकता हूँ? 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये बन जाएगा 3K2 पाई R² बाय L प्लस K1 पाई R² बाय L। सो पाई R² बाय L तो कॉमन ले लिया मैंने, सो K1 प्लस 3K2 बन जाएगा मेरे पास। ओके,
ये हो गया मेरा. नाउ आई वांट टू रिप्लेस दिस एंटायर सिस्टम में सिंगल मटेरियल. आई वांट टू रिप्लेस दिस एंटायर सिस्टम बाय अ सिंगल मटेरियल. अंदर भी बाहर भी, तो ये पूरा के इक्विवेलेंट बन गया. रेडियस कितना बन गया 2r. तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट लिखूंगा, वो कितना बन जाएगा L बाय के इक्विवेलेंट इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर, राइट, बिकॉज अभी तो क्रॉस सेक्शन पूरा ही 2r है, रेडियस 2r है. तो दिस विल बिकम L बाय 4 पाई के इक्विवेलेंट r स्क्वायर. ये रेजिस्टेंस है. I will equate इसका, ये वन में R equivalent है. So if I just equate these two, so L by pi r square into 1 by k1 plus 3k2 should be equal to this. तो देखो k equivalent का वैल्यू कितना बन जाएगा, k1 plus 3k2 divided by 4, and that's your answer. All right. So it's a very nice question that came in JEE 2019, 2020 थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे. तो all we had to do is recognize कि ये दोनों इनर और आउटर सिलेंडर्स आर इन पैरेलल. उसके बाद तो फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला अपन लगा इक्वेट कर दिया. then it's quite straightforward. Okay, देख लो. Let's talk about radiation. Now, every object in this universe radiates heat in the form of electromagnetic waves. ये एक observation है, factual, ठीक है. Every ये marker जो है that is radiating heat. My gloves are radiating heat, ठीक है. How much heat is actually radiated or actually emitted? उसके बारे में बात करते हैं. तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस टेम्परेचर लेट्स से T, उसका सरफेस एरिया इज लेट्स से A, ठीक है. सो यहां पर द पावर एमिटेड इज गिवन बाय E सिग्मा A/T पावर 4. तो अच्छी तरह से बात करते हैं सब कुछ क्या है. A इज द सरफेस एरिया, T इज द सरफेस टेम्परेचर. नाउ सिग्मा इज अ कांस्टेंट नोन एज द स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. जिसका वैल्यू इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़्ड टू 4. ये एक कांस्टेंट है, याद रखने या मतलब वैल्यू याद रहेगा तो अच्छी बात है. अदरवाइज जनरली उन लोग एग्जाम में दे देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है. ऐसे 5, 6, 7, 8 करके याद कर सकते हो. सो इट्स जस्ट अ कांस्टेंट एंड E इज कॉल्ड द एमिसिविटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. So it's a unitless constant. It depends on the material, ठीक है. यहां पर when E का value is 1, that is for what is known as a black body. So black body is a hypothetical ideal object that will absorb everything that is incident on it. Black body मतलब it is going to absorb everything that is incident on it. ठीक है. इन रियलिटी परफेक्ट ब्लैक बॉडी कुछ नहीं होता, बट अपने लिए एक आइडियल ब्लैक बॉडी, उसके लिए E का वैल्यू इज 1. दिस E का वैल्यू इज 1 फॉर अ ब्लैक बॉडी इज अभी के लिए फैक्चुअल मान सकते हैं, बट इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग नोन एज किरचॉफ्स लॉ. वो क्या होता है कि लेट मी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर. सो एब्जॉर्प्टिव पावर, ये जो नाम है पावर, वो एक्चुअली पावर नहीं है. इट इज अ यूनिटलेस नंबर. इट इज डिफाइंड एज कोई ऑब्जेक्ट पर अगर पावर इंसिडेंट है, रेडिएशन इंसिडेंट है, तो उसमें से कितना एब्जॉर्ब करता है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट पावर इज एब्जॉर्ब्ड. सो एब्जॉर्ब डिवाइड बाय इंसिडेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर. उसको पावर नहीं बोलना चाहिए, बट हिस्टोरिकली उसको पावर बोलते हैं. तो हमने उसको एब्जॉर्प्टिव पावर नाम दे दिया गया, बट इट्स नॉट पावर, इट्स अ फ्रैक्शन. सो ब्लैक बॉडी के लिए A का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, बिकॉज ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स 100% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. जितना इंसिडेंट है रेडिएशन वो 100% एब्जॉर्ब करता है.
तो इसका मतलब A का वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए 1 है. सो किरचॉफ्स लॉ स्टेट्स दैट A इज इक्वल टू E फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट फॉर अ ब्लैक बॉडी, इट्स ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स. हर ऑब्जेक्ट का जो एमिसिविटी है which is just a number multiplying the sigma t power 4, that is equal to the object का absorptive power. ब्लैक बॉडी के लिए तो है equal to 1 A equal to 1, but this is true for all bodies. ये हम प्रूव नहीं करेंगे बट याद रखेंगे, ठीक है. सो कमिंग बैक टू दिस फॉर्मूला, पावर एमिटेड का फॉर्मूला, नोट दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ज्यादा पावर एमिटेड होगा. इट इज प्रोपोर्शनल टू T⁴. ये सब ऑब्जर्वेशन बोलो, फैक्चुअल बोलो. एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिग्मा एंड यूनिटलेस नंबर दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. हर मटेरियल के लिए E का वैल्यू अलग होगा एंड E इज लेसर देन 1. It is equal to 1 for black body, but for all other materials it is lesser than 1. ठीक है. So ये अपने को याद रखना, क्योंकि A is also lesser than 1. A is the fraction of incident power. Obviously A cannot be greater than 1, right? जितना इंसिडेंट पावर है उसमें से कोई फ्रैक्शन एब्जॉर्ब करेगा, राइट? उससे ज्यादा कैसे एब्जॉर्ब करेगा? So A is lesser than 1. It is equal to 1 for black body. For all general objects it is lesser than 1, and therefore E is also lesser than 1 for all bodies that we observe, all real objects. ठीक है. All right. तो ये मेरा फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है. देख लो. Let's look at a question from JEE 2025. A wire of length 10 centimeters and diameter 0.5 millimeter. तो वायर का क्रॉस सेक्शन का डायमीटर दिया गया है. Is used in the bulb. टेम्परेचर उसका 1727 डिग्री सेल्सियस. पावर रेडिएटेड दिया गया है. एमिसिविटी पूछा गया है. ओके. सिग्मा का वैल्यू उन्होंने बोला ये ले लो. पाई का वैल्यू दिया गया है. सो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है कि पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या है? द पावर रेडिएटेड इज E सिग्मा 8T पावर 4, राइट? तो ये वायर है, इट्स अ वायर, सो इट्स अ सिलेंडर. सो इसका एरिया कितना बन जाएगा? अगर ये डायमीटर D है और ये लेंथ L है, सो एरिया, द सरफेस एरिया वुड बी 2 pi r into L. R is the radius, so twice of radius is D. ठीक है. Circumference 2 pi r into length, that will give me the curved surface area. We can ignore this small area and this small area. वो flat areas को अपन ignore कर सकते हैं because the curved area is much greater. The length is much more than the diameter. तो कितना बन जाएगा? Pi into 0.5 millimeters. So let's keep everything in SI units. तो 0.5 millimeter मतलब my diameter is 0.5 millimeter. This will be 5 into 10 power minus 4 meters, right? And length is 10 centimeter, मतलब 10 raised to minus 1 meter, correct? तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 5 into 10 power minus 5 meter squared. ओके. सो पावर कितना बन जाएगा? E एंड पावर का वैल्यू कितना दिया? 94.2. E into sigma is 6 into 10 power minus 8. Area is 5 pi into 10 power minus 5. T raised to 4. Now very careful, T has to be in Kelvin. जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं T has to be in Kelvins. So ये जो 1727 है, टेम्परेचर को मैं 1727 plus 273 Kelvin लिखूंगा. Alright, so that will give me 2000 Kelvin. Correct? So 2 raised to 4 is 16 into 10 raised to 3 है, raised to 4 करूंगा तो 10 raised to 7 बन जाएगा. ठीक है, सॉरी 10 raised to 12 बन जाएगा. ठीक है, 10 raised to 3 raised to 4, so 10 raised to 12. ऑलराइट. अब बस अपने को E के वैल्यू का कैलकुलेशन करना है. ठीक है. सो सबसे पहले 10 raised to सब हटा दो क्या? 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 5 is 10 raised to minus 13 into 10 raised to 12 is 10 raised to minus 1. तो यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 942 बन जाएगा. शुड बी डिवाइड बाय 6 करता हूँ, डिवाइडेड बाय 5 पाई डिवाइडेड बाय 16 शुड बी E. देखो कैलकुलेशन सही है मैंने. -8 -1 -13 प्लस 12 -10 मतलब 1/10 आ जाएगा, वो इधर ले लिया. ओके. अब बस कैलकुलेशन करना है. तो कैन यू सी कि अगर ये मैं नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूँ और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 314 इंटू 3 दिख रहा है. 14 इंटू 3 42, 3 इंटू 3 9, राइट. अभी कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी. तो यहाँ पे नीचे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो डॉट हटा दिया, डेसिमल हटा दिया मैंने. ठीक है.
सो बस ऊपर एक 100 बच रहा है। सो ये 3 इंटू 2 5 इंटू 10, तो ये 10 बचेगा। तो ई का वैल्यू बचेगा 10/16 मतलब 5/8। सो मुझे क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू विच इज 5। ओके, कैलकुलेशन ही है बट एक बार फॉर्मूला लगाया, इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, एसआई यूनिट्स में करना, तो दो चीज ध्यान रखना है, एसआई यूनिट्स में करना एंड टेम्परेचर को केल्विन में करना। देख लो, let's look at a question that came in J 2025. Two spherical bodies of the same material have radius 0.2 meter and 0.8 meters and temperature 800 and 400 Kelvin respectively. If the energy radiated from the smaller body C, energy radiated from the bigger body is how much? काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि एनर्जी मतलब एनर्जी रेटेड मतलब पावर की टर्म्स, पावर की बात कर रहा है वो, एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखना चाहिए था बट इट्स अंडरस्टूड। तो पावर रेडिएटेड का क्या फॉर्मूला था, E सिग्मा 8T पावर 4, राइट। तो अगर मैं रेशियो देखूँ, सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड बॉडी, उसको मैं बिगर बॉडी जो जिसका रेडियस ज़्यादा है उसको मैं ऑब्जेक्ट 2 बोलता हूँ, तो उसका एरिया A2, टेम्परेचर T2। E एंड सिग्मा, सिग्मा तो कांस्टेंट है, E भी दोनों के लिए सेम है बिकॉज दे आर बोथ मेड ऑफ द सेम मटेरियल। सो A1 T1 रेज़ टू 4, ये रेशियो मुझे चाहिए, ठीक है। तो A2 मतलब इट इज A2/A1 विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का स्क्वायर, करेक्ट। तो R2 is how much? 0.8 and R1 is 0.2. So 0.8 by 0.2 का squared into T2 by T1 का squared, 400 by 800. Sorry, raised to 4. ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 raised to 2 divided by 2 raised to 4. तो दोनों का रेडिएशन, रेडिएटेड पावर सेम है। सो ये जो मल्टीप्लिकेशन था बेसिकली वो E ही हो गया, एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी इज आल्सो E, ठीक है। देख लो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस एरिया A है, सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, तो सराउंडिंग से द रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन पावर comes out to be sigma 8 Ts power 4। कौन इंसिडेंट, कौन रेडिएशन दे रहा है, सराउंडिंग, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट नाउ। कितना एमिट करता है खुद से तो वो तो पता ही है, कितना इंसिडेंट है वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंसिडेंट पावर है सिग्मा 8 Ts पावर 4, क्योंकि इट्स लाइक पूरा सराउंडिंग इज लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्परेचर Ts एंड उसका एरिया इज A, तो इतना होता है इंसिडेंट पावर। कितना एब्जॉर्ब करेगा, the absorbed power by this body would be A times sigma 8 Ts power 4, because A itself was the fraction of incident power that gets absorbed, right? But remember that A is equal to E, तो ये बन जाता है E times sigma 8 Ts power 4, ठीक है। So the net power radiated, इसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग Ts है, लेट्स से कि T is greater than Ts, the net power radiated कितना emit करेगा, it will emit E sigma 8 T power 4, और कितना absorb करेगा, E sigma 8 Ts power 4, ठीक है। so this is the net power radiated, net मतलब सराउंडिंग को भी इंक्लूड करके, सराउंडिंग का इफेक्ट को भी इंक्लूड करके, कि इतना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना वो एमिट करता है। नेट एमिशन कितना है, इनका सब्ट्रैक्शन। Okay, when the temperature of the object is equal to surrounding, then net power radiated is 0. They are still emitting and absorbing, but the magnitudes are equal, and so the net power radiated is equal 0. ठीक है, alright। तो ये मेरा अगर क्वेश्चन में अगर सराउंडिंग भी दिया, नेट पावर रेडिएटेड दिया, then you use this formula। देख लो। Now let's talk about Newton's law of cooling। तो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से उसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है, ठीक है। वी आर गोइंग टू कंसिडर द केस वेयर T माइनस Ts, जो डिफरेंस है दोनों का टेम्परेचर्स के, दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये बहुत छोटा है, T माइनस Ts इज मच स्मॉलर देन Ts, ओके। तो इसका मतलब क्या कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि suppose this is 40 degree Celsius and let's say this is 35 degree Celsius, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है,
T minus Ts, temperature of the object minus temperature of the surrounding, कितना है 5 degrees Celsius. Let me write it as 5 Kelvin because it is important to note that this inequality is when we treat everything in terms of Kelvin. तो ये जो टेम्परेचर सराउंडिंग है वो केल्विन में कितना है 273 प्लस 35, करेक्ट. तो ये बन जाएगा 308 केल्विन, राइट. सो यू सी दैट T minus Ts5 is much lesser than 308 Kelvin. That is what I mean here. Okay. In this case, जब ये valid है, तब we can use what is known as Newton's law of cooling, जो अभी मैं जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा. But you should understand कि ये जो inequality है, that is in Kelvin. ये मत सोचना कि 5 degree Celsius is not very small compared to 35 degree Celsius, तो ये valid नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है. Kelvin में check करो. Okay, 5 Kelvin is much lesser than the surrounding 308 Kelvin. So if this condition is satisfied, in that case we can use Newton's law of cooling, which states that dt by dt, the rate of change of this temperature, is proportional to the temperature difference between the object and surrounding, and that proportionality constant is k या minus k बोलो, where k is positive. Now यहाँ पर सबसे पहले तो k is a constant, ठीक है. एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना फास्ट टेम्परेचर चेंज होगा. और द नेगेटिव साइन, व्हाट डज द नेगेटिव साइन टेल अस? कि टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. T इज ग्रेटर देन Ts, ठीक है. इफ T इज ग्रेटर देन Ts, मैं उसी केस की बात कर रहा हूं, तो नेट हीट विल बी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट, बिकॉज वो जितना एमिट करेगा दैट विल बी मोर देन व्हाट इट विल एब्जॉर्ब. So effectively net heat will be lost by the object, so it will cool, and therefore temperature will reduce, and temperature will reduce at this rate. And because this dt by dt is negative, क्यों negative? क्योंकि temperature is reducing, so rate of change of temperature will be negative. उसके लिए एक negative sign है यहाँ पर. K is a positive constant, ठीक है. So this is my Newton's law of cooling. इसको हम वैसे derive कर सकते हैं from Stefan Boltzmann's लॉ, वो सिग्मा AT पावर 4 वाले लॉ से डिराइव कर सकते हैं, बट वी वोंट बॉदर डूइंग दैट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेंस. बट ये एक्सप्रेशन हम याद रखेंगे. ओके, सो इससे वी कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ, सारे टेम्परेचर एक जगह इंटीग्रेट करता हूँ 0 से सम T. Initially T equal to 0 पे let's say temperature is some T1 and finally temperature is some T2, ठीक है. So क्या बन जाएगा मेरा T minus Ts का इंटीग्रल ln. So लिमिट्स लगाऊंगा तो ln T2 minus Ts माइनस लिमिट्स फिर से लगाऊंगा तो लोअर लिमिट लगाऊंगा तो T1 minus Ts. दिस शुड बी इक्वल टू माइनस KT, करेक्ट. तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, T2 minus Ts डिवाइडेड बाय T1 minus Ts should be minus KT. ये जो इक्वेशन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं. सो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस, बट इट्स क्वाइट इजी टू अराइव फ्रॉम दिस. फ्रॉम हियर टू हियर इज आल्सो वेरी इजी टू डिराइव, बट याद रहेगा तो अच्छा है. तो क्या है, ln ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस Ts डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर माइनस Ts शुड बी माइनस KT. T इज द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम T1 टू T2 टेम्परेचर, ठीक है. ऑलराइट, वी विल सी कपल ऑफ एग्जांपल्स, couple of questions जहाँ पे ये यूज होता है, exactly कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं. ओके, पहले ये देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2025. Temperature of a body falls from 40 degree Celsius to 24 degree Celsius in 4 minutes. Air का temperature मतलब surrounding temperature 16 degree Celsius दिया गया था. Temperature of the body in the next 4 minutes will be what? Okay, so मेरा equation क्या था, which I told कि ये equation से ऐसे टाइप के सारे question solve हो जाएंगे. It was this T2 is the final temperature, T1 is the initial temperature. So this is exactly the equation that we are going to use to solve this equation, solve this question. So initially temperature T1 क्या है 40, T2 क्या है 24. We are going from 40 to 24 in 4 minutes. तो मैं लिख सकता हूँ ln T2 24, surrounding temperature 16, T1 40, surrounding temperature 16. माइनस KT, T मतलब 4 मिनट्स, ठीक है. तो ये इक्वेशन देखो क्या बन रहा है मेरे पास, ln ऑफ 24 माइनस 16 मतलब 8, 40 माइनस 16 मतलब 24,
करेक्ट, इज माइनस के इंटू 4 मिनट्स। तो मतलब ये बन जाएगा 8/24 इज 1/3, तो ln3 लिखता हूँ 1/3, ln of 1/3 इज माइनस ln3, माइनस माइनस कट के ये बन जाएगा के इंटू 4 मिनट्स। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड सिचुएशन क्या बोला गया कि द टेम्परेचर इज नाउ गोइंग टू गो फ्रॉम 24 डिग्री सेल्सियस टू सम फाइनल वैल्यू इन हाउ मच टाइम, इन 4 मिनट्स। दिस फाइनल वैल्यू इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, तो अब 24 becomes T1, 24 becomes T1 because वो अब इनिशियल टेम्परेचर है फॉर द नेक्स्ट 4 मिनट्स। आई विल हैव ln ऑफ T2 minus 16 divided by 24 T1 minus 16, 16 is the surrounding temperature, should be minus K into 4 minutes। तो ये नेगेटिव साइड इधर ले लूँ तो ये बन जाएगा ln ऑफ 24 minus 16 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट नेगेटिव साइन इधर ले लिया तो ln में ln के अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। ln ऑफ x इज माइनस ln ऑफ 1/x। ये राइट हैंड साइड के इनटू 4 मिनट्स है, ये भी राइट हैंड साइड के इनटू 4 मिनट्स वाला ln इक्वेट करके, सो 3 शुड बी इक्वल टू, सो 8/T2 minus 16 शुड बी 3, सो 8 शुड बी 3T2 minus 48, सो T2 का वैल्यू आ जाएगा 56/3 डिग्री सेल्सियस, और ये ऑप्शंस में था। ऑलराइट, तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन दैट यू शुड यूज। ओके, देख लो अब ये जो ln वाला मेथड देखा हमने, ln ऑफ T2 minus TS divided by T1 minus TS, this is very useful when questions are asked of the type कि 4 मिनट में temperature is going from some value to some value and then in the next 4 minutes what will be the final temperature। So in that case दोनों इक्वेशन जो पहले 4 मिनट के लिए नेक्स्ट 4 मिनट के लिए हम लिखेंगे, उसमें दोनों राइट हैंड साइड में t का वैल्यू 4 मिनट आएगा एंड देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। सो ln के अंदर जो क्वांटिटीज है पहले 4 मिनट के लिए एंड नेक्स्ट 4 मिनट्स के लिए, उनको हम इक्वेट कर देंगे, राइट। बट इफ द टाइम्स आर डिफरेंट देन वी कांट जस्ट इक्वेट ln के अंदर वैल्यूज, देन फिर वो ln वगैरह का ln के टर्म्स आना शुरू होंगे। सो ऑफन जेईई मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि ऑप्शंस में ln के टर्म्स नहीं होते हैं एंड द टाइम्स आर डिफरेंट। सो इन दैट केस वी हैव टू यूज व्हाट इज नोन एज द एवरेज मेथड। So it's an approximation, but that is what is expected, and it is an okay approximation. That is what is expected to solve questions जहाँ पे ln के terms आ रहे हैं but options में नहीं। So I'll show you an example से बताता हूँ कि average method मतलब क्या। कि suppose temperature is going from T1 to T2 in some time T, ठीक है। So, सबसे पहले आई डिफाइन माई एवरेज टेम्परेचर। एवरेज कितना बन जाएगा T1 plus T2/2, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर कितना बन जाएगा डेल्टा T, T2 minus T1, करेक्ट। सो व्हेन आई राइट माई इक्वेशन dt/dt इज माइनस k times T minus TS, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम T1 to T2, ये dt/dt को मैं अप्रोक्सीमेटली करने वाला हूँ डेल्टा T/डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर बाय टोटल टाइम, ठीक है। इट्स लाइक एन एवरेज क्वांटिटी, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एंड देन यहाँ पर t तो एक वेरिएबल है एज इट चेंजेस, तो मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा कि आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस t बाय द एवरेज वैल्यू। इट इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ। सो डेल्टा t मतलब ये टाइम t, चेंज इन टाइम मतलब ये टाइम t, एंड डेल्टा t क्या है T2 minus T1, which will be negative because T2 is lesser than T1, but that negative sign is therefore why we have this negative on the right hand side. Okay, K is a positive constant and then T is the average temperature. All right. तो जैसे कि अगर मैंने let me just show you an example, एक previous year question ही करते हैं and where I'll apply this and show you how to apply this. Okay, देख लो। Let's look at a question from JEE 2025. A cup of coffee cools from 90 to 80 degrees Celsius in t minutes when room temperature is 20 degrees Celsius. The time taken for it to cool from 80 to 60 degrees Celsius is how much? ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम है 90 से 80 t है, but 80 to 60 is not t, it's something other than t. Then the ln method will not be useful because options में कोई ln नहीं है,
Okay, so then we use the average method. So average method क्या था? Delta t by the change in time is minus k times the average temperature minus the surrounding temperature. तो सबसे पहले 90 to 80 डिग्री सेल्सियस in t minutes. Okay, so change in temperature कितना है? -10 final minus initial 80 minus 90 divided by delta t कितना टाइम टेकन माइनस के टाइम एवरेज कितना है 90 से 80 85 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 20. ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गया 10 by t शुड बी k टाइम्स 65. तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया. नाउ लेट्स राइट द सेम इक्वेशन फॉर द सेकंड पीरियड ऑफ टाइम व्हिच इज व्हेन द टेम्परेचर गोज फ्रॉम 80 to 60. सब 80 to 60 जा रहे इन सम लेट्स से डेल्टा टी टाइम व्हिच इज अननोन, जो हमें निकालना है. तो T1 is 80, T2 is 60, so change in temperature delta T कितना बन जाएगा -20 डिवाइडेड बाय द अननोन टाइम माइनस के टाइम्स एवरेज टेम्परेचर कितना है 70 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 20. तो देखो क्या बन जाएगा -20 बाय डेल्टा T शुड बी माइनस माइनस को काट दो k टाइम्स 50. करेक्ट. बस अब अपने को डिवाइड करना है बिकॉज k एलिमिनेट करना है. अल्टीमेटली मुझे क्या करना है k को जो कांस्टेंट है वो एलिमिनेट करना है. तो इफ आई जस्ट डिवाइड 1/2 मेरे पास क्या आ जाएगा 10/t इंटू डेल्टा t बाय 20 शुड बी 1/2 65/50. करेक्ट. सो ये 2 हो गया, ये 25 हो गया. सो डेल्टा t बन गया 65t/25 मतलब 13t/5. So answer would be this. Alright, तो इस तरीके से एवरेज वाला फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो when the times are different for the first situation and the second situation. In that case फिर ln वाला मेथड में ln वगैरह आना शुरू होगा. अगर ऑप्शन में ln के टर्म्स में दिया then it is understood that you use the ln method. but अगर ऑप्शंस में से नंबर्स टाइप दिए then it's understood that you use the average method. Okay, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2023. A body cools from 80 to 60 degrees Celsius in 5 minutes. Surrounding temperature दिया गया था 20 degrees Celsius. Time to cool from 60 to 40 degrees Celsius is how much? So यहाँ पे फिर से अब I'm going to use the average method. तो average method क्या बोलता है? Delta t by delta t is minus k times t minus t average minus ts, right? तो first situation में 80 से 60 जा रहा है तो change in temperature -20 divided by कितना time? 5 minutes should be minus k times average temperature कितना है 80 से 60 70 minus surrounding कितना है 20. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा -20/5 should be माइनस माइनस कैंसिल करता हूँ k times 50. ओके, इसको ऐसे ही रखता हूँ. सेकेंड सिचुएशन में टाइम टू कूल फ्रॉम 60 to 40 तो चेंज इन टेम्परेचर कितना फिर से -20 डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन विच इज अननोन जो हमें निकालना है should be equal to minus k times average temperature 60 to 40 average is 50 minus 20 30. करेक्ट. ये नेगेटिव साइन हटाता हूँ. ऑलराइट, तो अब क्या करूँ डिवाइड कर देता हूँ फिर से k एलिमिनेट करने को. सो 1/2 करूँ. सो 20/20 तो कट गया, नीचे 1/5 ऊपर डेल्टा t. सो डेल्टा t/5 शुड बी 50/30. So delta t would be 25/3 minutes. Minutes क्यों? Because ये भी 5 भी minutes में था. So ये जो delta t by 5 minutes है, minutes से multiply करूँगा 5/3 तो 25/3 minutes. And option सब seconds में दिया गया है. So 25/3 into 60. तो ये बन जाएगा 500 seconds. ठीक है. Alright, देख लो. Now let's talk about how temperature changes with time in Newton's law of cooling. तो मतलब जैसे मेरे पास इक्वेशन था dt/dt इज माइनस k टाइम्स t माइनस ts. इसको हमने इंटीग्रेट करके निकाला था t2 माइनस ts डिवाइड बाई t1 माइनस ts इज माइनस kt. करेक्ट. सो t2 माइनस ts डिवाइड बाई t1 माइनस ts इज e रेज टू माइनस kt. तो t2 का वैल्यू कितना बन जाएगा ts प्लस T1 minus Ts times e raised to minus Kt. So T2 is the temperature at T. T equal to 0 पे temperature T1 था, time T पे temperature T2 था. So let me just write it as
टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह दिख रहा है। सी t इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना था T1 एंड वो कम होगा, ऑफ कोर्स वी नो कि वो कूल हो रहा है, सो दैट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। किस तरीके से कर्व दिखेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो, ये तो एक कांस्टेंट है और ये टर्म एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, मतलब इट विल गो दिस वे। ठीक है, एंड Ts ये जो इवेंचुअली at t tending to infinity, can you see this term will tend to 0 and therefore you will be left with Ts. So ultimately after a long time, after a very long time, the temperature of the body will approach the temperature of the surrounding. ठीक है, तो infinite time के बाद temperature will become equal to the temperature of surrounding, but it will take a long time, infinite time लगेगा according to this equation. Alright, so ये जो ग्राफ है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी तुमको पता होना चाहिए, क्वालिटेटिवली वगैरह पूछा जा सकता है ग्राफ्स वगैरह ऑप्शन में देकर। ओके, देख लो। लेट्स टॉक अबाउट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अगर मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के लिए जो पावर इमिटेड होता है वो कितना होता है, सिग्मा AT पावर 4, ये पता है हमें, एमिसिविटी इज इक्वल टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है, वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एमिसिव पावर, which is actually not power but it is sigma T power 4, so per unit area. And इसको अगर मैं E से represent करूँ, we define something called spectral emissive power. Now what happens is, इसका definition मैं बताता हूँ क्या है, but what happens is that जो radiation emit हो रहा है उसमें it's of the form of electromagnetic waves, तो उसमें बहुत सारे wavelengths हैं, in fact all wavelengths are present. ठीक है, सो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज द एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, सो if you have an object that is radiating electromagnetic waves, it's not just a single wavelength that is coming out, it's lots of wavelength and हर wavelength का intensity अलग है। So this spectral emissive power is representative of the intensity for a given wavelength. ठीक है, so it is you can say it's like emissive power per unit wavelength. So when we plot this spectral emissive power plot करेंगे on the y-axis and x-axis पे wavelength plot करेंगे, तो the curve looks something like this. ठीक है, so this ये जो y-axis पे है वो क्या है, the spectral emissive power. So it gives you an idea कि हर wavelength के लिए कितना radiation निकल रहा है। So there is a maxima you can see in the graph, या observation बोलो या factual बोलो, उसको मैं lambda m से represent करता हूँ। So lambda m into t turns out to be a constant. So this is called the peak wavelength. It's not the maximum wavelength, it's the wavelength जहाँ पे the spectral emissive power is maximum. ठीक है, तो that and temperature of the black body का जो product है, that turns out to be a constant, और इसका जो वैल्यू है that is equal to 2.88 into 10 power minus 3, और यूनिट्स क्या होगा SI यूनिट्स में मीटर इंटू केल्विन, राइट, सो केल्विन मीटर। ठीक है, सो इसको अप्रॉक्सीमेटली जैसे NCERT में 2.9 कर दिया। ऑलराइट, तो ये मेरा कांस्टेंट का वैल्यू है जो अपने को याद रहना चाहिए। एंड ये जो प्रोडक्ट है दैट इज अ कांस्टेंट फॉर, व्हाट डू आई मीन बाय कांस्टेंट, it means that if I increase the temperature of a black body, this B will remain a constant. So what will change if I increase temperature and B remains a constant? इस इक्वेशन में क्या चेंज होने वाला है, लैम्डा। ये B को Wien's constant बोलते हैं। So like I said, temperature बढ़ाएंगे, if I increase the temperature, the peak wavelength decreases. The wavelength that has the maximum intensity that decreases. ठीक है, so अगर ये ग्राफ ऐसा है at say temperature T1, if इसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ग्राफ ऐसे दिखेगा at T2। क्यों? क्योंकि the peak wavelength will decrease. Wavelength is on the x-axis, right? So the peak wavelength will decrease. Okay, on the x-axis it will decrease. So T2 is greater than T1. So एक तरीके का क्वेश्चन जो आ सकता है, क्वालिटेटिव आ सकता है, ऐसे दो ग्राफ दिए जाएंगे, पूछेंगे कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द हायर टेम्परेचर। तो पीक वेवलेंथ देखो,
एक्स एक्सिस पर पीक वेवलेंथ जिसका कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ऑलराइट, तो एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा है। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इज दैट दे कैन जस्ट गिव यू कि टू बॉडीज हैव पीक वेवलेंथ्स in the ratio, let's say 1:2. So find the ratio of emissive powers. Two black bodies hai, they have peak wavelength in the ratio 1:2. So find the ratio of the emissive powers या total power, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो emissive power का रेशियो क्या बन जाएगा? T1⁴ divided by T2⁴, correct? Emissive power is sigma T⁴. But temperature is inversely proportional to wavelength, peak wavelength, because B constant है. So this will become λ2 by λ1⁴. And λ2 by λ1 is 2:1. λ1 is 1, λ2 is 2. ठीक है? So जिसका वेवलेंथ, पीक वेवलेंथ कम है, 1:2 के रेशियो में जिसका पीक वेवलेंथ कम है, that will emit 16 times more power compared to the other body. Emissive power rather will be 16 times the second body. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा। ओके, सो ये रहा मेरा वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, देख लो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने पूरा हीट ट्रांसफर कर लिया है, कंडक्शन, रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टार्ट टू एंड। एंड इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया इन योर जेईई मेंस, यू शुड बी एबल टू डू इट वेरी वेरी इजीली। सो बस लास्ट फ्यू ईयर्स के PYQs कर लेना, and I'm very confident you should be able to solve majority of those PYQs. I will see you next time and I will see you at the top.